Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself, Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Contracts and Accounts. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. Vision of the department to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are three missions of the department. These are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools, experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 3, that is tender and tender documents, and today's topic is terms related to tender documents. To study this topic, we will go through learning outcome. It includes course outcome, program outcome and unit outcome. Let us see course outcome. Prepare the tender documents for civil engineering works. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट बना सकते हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द गिवन सिचुएशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यह टॉपिक पढ़ने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में गिवन सिचुएशन से रिलेटेड कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है यह आप बता सकते हो. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट definition of tender document and list of tender documents. In today's session, we will see terms related with tender document. कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड टेंडर नोटिस पेपर में पब्लिश होता है. टेंडर नोटिस पब्लिश होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर फॉर्म भरना चाहता है वह टेंडर फॉर्म खरीद के अपने रेट्स कोट करके सबमिट करता है. यह प्रोसीजर पूरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फिल करके दिए हुए टाइम के हिसाब से रिलेटेड ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है. इस टेंडर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टर्म्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस कौन सी रहती है यह आगे देखते हैं. दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू टेंडर डॉक्यूमेंट, एंड दीज आर time limit, time extension, penalty, defective materials and workmanship, termination of contract, suspension of work, subletting of contract, price variation clause, that is escalation, defect liability period, liquidated and unliquidated damages.
Let us see details of each. तो सबसे पहले देखते हैं टाइम लिमिट. इट इज़ द फिक्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क. मतलब काम कंप्लीट करने के लिए लगने वाला वक्त. यह टाइम लिमिट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में मेंशन किया रहता है. नेक्स्ट है टाइम एक्सटेंशन. इट इज़ द एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क. फॉर टाइम एक्सटेंशन, contractor has to submit an application to executive engineer giving all details for delay of work. इसमें कॉन्ट्रैक्टर को काम कंप्लीट करने के लिए लगने वाला ज़्यादा वक्त मेंशन रहता है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एप्लीकेशन लिखकर काम लेट होने का सही कारण बताना पड़ता है. नेक्स्ट है पेनल्टी. If contractor fails to give satisfactory work as per specification and condition of contract, then fine is imposed on contractor called as penalty. It is up to 10% of contract amount. कॉन्ट्रैक्टर अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं करता और कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस फॉलो नहीं करता तो उसे इसके लिए फ़ाइन भरना पड़ता है और यह फ़ाइन जनरली टोटल कॉस्ट के हिसाब से 10% रहता है. नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है डिफेक्टिव मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप. इफ एनी वर्क इज कंप्लीटेड विथ डिफेक्टिव मटेरियल्स, पुअर वर्कमैनशिप एंड एनी डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड, देन दीज डिफेक्ट्स विल रेक्टिफाई बाय हिज ओन एक्सपेंसेस. अगर कॉन्ट्रैक्टर का काम कंप्लीट करने के लिए अच्छे मटेरियल्स यूज़ नहीं होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मेथड यूज़ नहीं होती है, ऐसे कंडीशन में कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर डिफेक्ट आते हैं तो यह डिफेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर को अपने पैसे से सुधारना पड़ता है. नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टर्मिनेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना. द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अंडर फॉलोइंग कंडीशंस. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस रहती है. यह कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट फुलफिल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट की लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं करता. कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट मेंटेन प्रोग्रेस ऑफ वर्क. मीन्स कॉन्ट्रैक्टर अगर वर्क की प्रोग्रेस मेंटेन नहीं करता. कॉन्ट्रैक्टर सबलेट्स हिज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्टर अगर यह काम किसी और कॉन्ट्रैक्टर को देता है. कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कंप्लीट विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड. कॉन्ट्रैक्टर अगर काम टाइम लिमिट में ख़त्म नहीं करता. सो दीज आर द some conditions for which the contract may be terminated. Next condition of contract है suspension of work. If the work carried out by contractor is not as per specification, design and drawing, the work can be suspended by competent authority and it is informed to contractor in writing. कॉन्ट्रैक्टर अगर काम कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में दिए हुए स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से नहीं करता है तो वह काम हायर अथॉरिटी से कैंसिल हो सकता है और इसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर को लिखित में दी जाती है. नेक्स्ट कंडीशन है सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्टर हु इज़ अवॉर्डेड विथ टेंडर गिव्स सम पोर्शन ऑफ वर्क टू अनदर कॉन्ट्रैक्टर to carry out work with his permission is called as subletting. कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हुआ काम अगर वह किसी और को देता है तो उस कंडीशन को सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. सबलेटिंग के लिए अलग अलग कारण रह सकते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज वर्क किसी और कॉन्ट्रैक्टर से करना है, या कॉन्ट्रैक्टर अगर बहुत दिनों के लिए बीमार है, या उसके पास
काम कंप्लीट करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर वह काम किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे सकता है और यह कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की रहती है। नेक्स्ट कंडीशन है प्राइस वेरिएशन क्लॉज, दैट इज एस्केलेशन। In this condition of contract, the contractor has to pay compensation for variation in cost of materials and labors. जैसे कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए टाइम कंप्लीशन लिमिट ज़्यादा रहती है, ऐसे कंडीशन में मटेरियल्स और लेबर्स की कीमत ज़्यादा हो जाती है यानी बढ़ जाती है और कॉन्ट्रैक्टर को यह मटेरियल और लेबर की ज़्यादा कीमत मिलना चाहिए, इसलिए यह कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहती है। नेक्स्ट कंडीशन है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। दिस इज अ पीरियड इन विच कॉन्ट्रैक्टर इज सपोज टू रेमेडी ऑल डिफेक्ट ड्यू टू फॉल्टी मटेरियल्स एंड बैड वर्कमैनशिप। दिस पीरियड इज जनरली एडॉप्टेड एज 12 months आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम कंप्लीट होने के बाद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कुछ डिफेक्ट्स आते हैं तो यह डिफेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को अपने पैसे से करके देना पड़ता है। यह पीरियड जनरली 12 मंथ का रहता है। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो देखते हैं व्हाट इज मीन बाय लिक्विडेटेड डैमेजेस। It is an amount of compensation payable to owner by contractor due to delay in construction of work. कंस्ट्रक्शन वर्क अगर टाइम लिमिट में ख़त्म नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ अमाउंट ओनर को देना पड़ता है और उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। नेक्स्ट है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। दीज आर ऑर्डिनरी डैमेजेस हैविंग relation with the actual damage done for the non-completion of work within due date of completion or for not maintaining progress as per condition of contract. इसमें एक्चुअल डैमेज ऑन साइट की कंडीशन मेंशन रहती है। वर्क की प्रोग्रेस मेंटेन ना करना भी इसी कंडीशन में रहती है। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आर्बिट्रेशन। व्हाट इज मीन बाय arbitration? During execution of work, owner and contractor may come across situations where disputes may arise. The process of settling the dispute between owner and contractor is called as arbitration. कंस्ट्रक्शन वर्क जब शुरू रहता है तब कभी कभी किसी कारण से ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच झगड़ा होता है। यह झगड़ा अगर आगे बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा और काम इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशन रहती है जिससे यह झगड़ा खत्म हो जाए और काम कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन ना ले सके। कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच का झगड़ा मिटाने की जो प्रोसेस है उसे आर्बिट्रेशन कहते हैं और जो व्यक्ति यह झगड़ा मिटाता है उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। इस आर्बिट्रेटर की कुछ क्वालिटीज़ रहती है ताकि दोनों पार्टी उससे सहमत हो। तो यह क्वालिटीज़ क्या है देखते हैं। द क्वालिटीज़ ऑफ आर्बिट्रेटर आर एज फॉलोज। द आर्बिट्रेटर शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्क। उसे काम करने का पूरा अनुभव रहना चाहिए। ही शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वर्क। काम की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसे मालूम रहना चाहिए। He should knows rules procedures of law. उसे रूल्स मालूम रहना चाहिए और लॉ की प्रोसीजर का उसे पूरा नॉलेज रहना चाहिए। मेन थिंग इज ही शुड बी इम्पार्शियल एंड एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। सबसे मेन बात तो यह है कि वह निष्पक्ष होना चाहिए ताकि वह दोनों पार्टीज की बातें अच्छे से समझ सके। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ arbitrator. In this way, in today's session, we studied about terms related to tender document and contract conditions.
Hope you understood the portion explained here. And in next session, we will see procedure of submitting field tender document. Important questions on today's topic are: enlist any 4 situations when the contract is terminated. Describe the term escalation. Define liquidated and unliquidated damages. Define arbitration. State qualities of arbitrator for civil construction works. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.